This is the third time in a week that on different highways across India, we have met with migrant workers. Usually the workers we've been meeting have been walking on foot. But this time we are seeing workers who are cycling. As we were driving towards Madhya Pradesh, and we're right now in Uttar Pradesh, we're on the Super Expressway near Agra, we saw these group of men, and you can see there are many of them, there's a small group of them, and we saw them all on their cycles. And we stopped to talk to them, and we discovered that these two are migrant workers who are cycling their way all the way from Panipat in Haryana, where they work, to Bihar, which is where they want to get to. So remember, each time the government tells the Supreme Court there are no migrants on the road, all you have to do is to pull out our ground reports. We have personally borne witness to the fact that in the last 7 days on 3 different highways, I have met migrant workers, potato farmers, cumin farmers, and now these are men who work in a blanket factory. Kambal banane ke kaam karte hain ye. We have met them as they struggle to get home. Let's talk to a few of them, and I'll just ask the camera to come this side. भाई साहब, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, आप बताइए, आप लोग जो सब हैं पानीपत में काम करते हैं? बिल्कुल। कंबल सिलाई का? बिल्कुल। तो आप ये साइकिल लेके कहाँ जा रहे हैं? बिहार, औरंगाबाद बिहार जा रहे हैं। ये मुझे बताइए, आप सड़क पे साइकिल चलाते हुए कितने दिन हो गए हैं आपको? 3 दिन हो गए मैम जी। 3 दिन हो गए हैं। और खाना पानी क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ सरकार कुछ भी नहीं दी है। आपके वहाँ कुछ तो सरकारी शेल्टर, कुछ राशन की दुकान, कुछ तो होगा। हमारे बिहार के भी तो वो भी ऑनलाइन 1000 अदर राज्य में फंसे हुए को उन लोग को 1000 रुपये देने की सरकार कोशिश की। उन लोग को हम लोग 15-20 दिन पहले ऑनलाइन किए थे, फिर भी हम लोग को पैसे नहीं मिले। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, आप कपड़ा ढक लीजिए, मास्क पहन लीजिए, क्योंकि कोरोना का टाइम है, आपको भी पहनना चाहिए। मैं आप लोगों को सबको दिखाना चाहती हूँ, जस्ट इफ द कैमरा स्टेप्स बैक, just move back, because let's give you a sense of where we are standing. We're on a highway, and in the distance you can see there is a police jeep. The police stopped these men from going any further. They want to get to Bihar, the state which has consistently refused to take back migrant workers. That's Nitish Kumar via Aligarh, and we are on the expressway. और यहाँ पे मैं और लोगों से बात करती हूँ। आपने कहा कि आपको तनख्वाह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो काम था वो बिल्कुल बंद हो गया? बिल्कुल मैडम जी। तो आप मुझे बताओ, साइकिल से कितने किलोमीटर बनता है बिहार का रास्ता? कम से कम 10 दिन लग जाएंगे मैडम जी जाने में। कितना? 10-11 दिन बन जाएंगे जाने में। 10 दिन लग जाएंगे। तो रास्ते में खाने के लिए क्या करोगे? जो पानी बस है, बिस्कुट नमकीन लेकर चले, तो अभी तक खाए हुए, आगे भगवान जाने, हम लोग को पता नहीं। अभी बिल्कुल खाना नहीं है? नहीं मैडम जी। This man is telling me that they carried some biscuits and water, and they have exhausted those biscuits and water, and they have absolutely nothing, and they do not know where the next meal will come from. Sir, आपसे बात करती हूँ. Remember, these are men on their cycles. They're cycling their way from Panipat to Bihar. That's if they can get there. Sir, आपका नाम? सिकंदर से। सिकंदर जी, आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बहुत से हमारे दर्शक पूछते हैं कि जहाँ पे ये लोग हैं, ये वहीं क्यों नहीं रह जाते? खाने को नहीं मिला तो क्या करूं? आपने वहाँ कोशिश किया? क्योंकि सरकारी स्कीम्स भी हैं, राशन भी है। सर, पैसे रहेगा तभी तो खाएंगे। नहीं, सरकार की तरफ से भी तो मिलता है। नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। जहाँ आप काम करते थे, आपके मालिक लोगों ने क्या बोला? मालिक लोग कुछ दिया ही नहीं। एक भी पैसा नहीं? नहीं। आपने आज क्या खाया? आज बिस्कुट खाया। आज पूरा दिन आपने सिर्फ बिस्किट खाया? हाँ। और आगे क्या खाएंगे? आगे बिस्कुट पड़ा है, वही थोड़ा बड़ा खाएंगे। सिर्फ बिस्किट है आपके पास और पानी है? हाँ, बस। They are surviving on biscuits and water. आपकी उम्र सर? उम्र मेरा 35 साल हुआ। और घर में सब फैमिली वही है, गांव में? गांव में है बच्चे कुछ। These men are saying that they have biscuits and water, and they are fast running short, and we are on the expressway. This is the Agra Expressway, the Yamuna Expressway as it's called, a Swiss multi-lane expressway. But this is the inequality that has been wrenched open for all to see by this lockdown, especially when it comes to the dignity that we have failed to give our migrant labor. Sir, आपका नाम? राजा कुमार। राजा जी, ऐसे साइकिल पे कैसे कोई इंसान पहुंच सकता है, बताओ मुझे। क्या करें, मजदूरी है सर। और अभी पुलिस ने भी आपको रोक दिया। हाँ, क्या करोगे फिर? क्या करूँगा मैं, ये टाइम बिताऊंगा, क्या करूँगा? पुलिस वालों को क्या बोलेंगे आप, कैसे मनाएंगे उनको?
मैं क्या रिक्वेस्टिंग तो करेगा। क्या करें? रिक्वेस्टिंग तो करेंगे सर कि किस प्रकार हम लोग को छोड़ा जाए कि हम लोग आगे भी बढ़े कुछ। मुझे एक बात बोलिए, अगर रास्ते में जैसे आप उत्तर प्रदेश के थ्रू जा रहे हैं, कोई आपको कोई रैन बसेरा दिख जाता है जहाँ खाना वाना मिल जाता है, तो आप वहीं क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप लोग घर क्यों पहुँच रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे ही नहीं जी। खाने पीने का व्यवस्था मिल जाता तो कोई जल्दी जाने का हम लोग कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई हम लोग खाने पीने का व्यवस्था ही नहीं मिल रहा है कुछ। क्या कमाते थे जब आप कंबल सिलाई का काम करते थे? हम रिंग फ्रेम चलाते थे। नहीं, कितना कमा लेते? वही 8-9 हज़ार के 8 घंटे के मिलता है। हाँ, कितना एक दिन में कितना मिलता है? एक दिन में वही मिलता है 270 रुपये। 270 रुपये मिलती है। 270। 270 रुपया एक दिन के काम। हाँ, एक दिन और वो बिल्कुल ही बंद हो गया, बंद हुई, बिल्कुल बंद हो गई। मतलब एक पैसा भी नहीं मिला। एक पैसे नहीं मिला। So I just want to sort of reflect on the extent of poverty here that we're talking about. These are men who earned 270 rupees a day कंबल सिलाई का काम करने के लिए, and they lost even that. And then there is the psychological need of getting home. ये भी तो होता है कि घर जाने की इच्छा होती है, जब कुछ खराब होता है तो लोगों में घर जाने की इच्छा होती है। ये नहीं है? नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। भोजन का है। प्रॉब्लम भोजन का है, हाँ बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा। हाँ हाँ? हाँ। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ। पैसे भी नहीं है, लाला देगा भी नहीं, तो इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, क्या करें। तो ये नहीं है कि आप वैसे ही घर जाना चाहते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं जिंदा रहने की बात आ गई। भोजन भी नहीं दे रहा था लाला, हाँ। पैसे भी नहीं दे रहा था और खाना भी नहीं। पैसा तो लाला दिया ही नहीं बाबू। और भोजन तो जो बच रहा था वो खा रहे थे, अब खत्म हो गया था, क्या करेंगे। अब आप मुझे बताइए आगे कितने दिन लगेंगे साइकिल में पहुंचने में? अभी कम से कम 6 दिन लग जाएगा, 5-6 दिन। तो आप खाने के बिना कैसे करेंगे? कि वो है जो बचा है वो लेकर खाते पीते जाएंगे, और क्या करेंगे। बिस्किट और पानी, क्या करें। कुछ चावल दाल है? चावल दाल नहीं। हाँ? चावल दाल कुछ नहीं है? मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, ये ठीक है? इनको क्या हो गया? ये ठीक है? आप ठीक हो? तबीयत खराब हो रही है? थक भी गए होंगे? हाँ, थके हूँ। जब शक्ति नहीं है चलने का, अपने चला रहा हूँ किसी प्रकार गते गते, अस्थिर से खाते पे थोड़ा बहुत है जो खा पी कर चला रहा हूँ। आप लोगों से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे अगर आप कोई विनती करना चाहें? सरकार से हम यही कहते हैं कि मजदूर को सबसे पहले व्यवस्था कुछ किया जाए कि आगे भी कुछ काम मजदूर किए करें, ताकि कहीं जो भी मजदूर फंसा है अपना पड़े रहे तो उसकी व्यवस्था करे ले जाने का या ले आने का। मैं बिहार सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ कि जो मजदूर फंसे हुए बाहर में उनको या निकाले या एक सुविधा उसको पहुँचाए। क्या 1000 का सब लोग अथी ऑनलाइन किए, उसमें 1 रुपया भी नहीं मिला। नहीं मिला। अभी आप लोग को डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा? कैसे पहुंचेंगे वापस घर? अब डर लगता करता, हम थोड़े चलते, भूखे भी मरना था, ऐसे ही मर जाएंगे, वो भी बढ़िया है, बेहतरीन। These are men who say, and I just want to show you where we're standing again. These are men who say that it was not an emotional need to be home. It was actually about hunger, about food, about 2 square meals a day, about a lala, that is an employer, who refused to pay either wages or even provide them food, who struggled to get 1,000 rupees to get by but could not. And instead, they are now cycling with biscuits and water that may run short at any moment. And a police force that not just stops them every few hundred meters, but one that, according to them, is often abusive with them. As our Supreme Court takes note of the issue of migrants on the road, we urge them to pay attention to these images. In the past 1 week, we have reported from 4 highways like this one and met men, women, and children still in search of home.